मेरा नाम रश्मि कानोडिया है। मैं यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी का वर्कशॉप अटेंड करने आई थी। आज नेचर्स फ़ोटोग्राफ़ी का वर्कशॉप था सुमित जी का। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे पास कैमरा कई कई समय से मेरे पास कैमरा पड़ा था, लेकिन मैंने कभी उसे यूज़ नहीं किया। फिर मुझे पता चला था सुमित जी के बारे में काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे, तो मैंने आज ये वर्कशॉप अटेंड की थी। सुबह हम यहाँ पे आ गए थे अरी फॉरेस्ट में। तो सुमित जी ने काफ़ी डिटेल में कैमरा के बारे में बताया, जो मुझे कभी पहले पता नहीं था कि कैमरा में ये सेटिंग्स भी होती हैं, इस तरह से भी हम फ़ोटो ले सकते हैं। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला और अभी बहुत रूम है आगे भी और सीखने का। तो आगे जो भी वर्कशॉप्स होंगे मैं ट्राई करूँगी अटेंड करने का। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। तो होपफुली और अच्छा सीखेंगे आगे सुमित जी की गाइडेंस में। तो अच्छा वर्कशॉप था। मैंने एक तो फोकस करना सीखा, कैमरा फोकस कैसे करते हैं और कैमरे के किस पार्ट को आपको स्टेबल रखना है, क्या लेंथ पे आपको खड़े रहना है, अपर्चर सेटिंग कैसे करनी है, आईएसओ सेटिंग कैसे करना है। ये सब चीज़ें जो मुझे पहले कभी पता नहीं थी, मैंने नाम भी नहीं सुना था। मैंने आज सीखा कि ये कैमरे का करना क्या है, इतना बड़ा मशीन आपके हाथ में, लेकिन इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो आज वो मैंने सीखा। थैंक यू। Hi everyone, I'm Rajan Tehlani. Today I'm doing a nature's photography workshop with Sumit, and today I'm carrying this camera that is Canon 80D and the lens that is 100 to 400 lens with 4.5 f value. Today was a very nice day. We came early in the morning and started this workshop around 7 in the morning. The lighting conditions were too good, and we got a very good nice nature's shot, and a couple of birds also we captured them. Today we have learnt more about the metering modes, the composition, and how to capture the depth of field, and what are the exposure triangles that we can use, we should use for doing nature's photography. And exposure triangle consists of all this three aspects, that is your shutter speed, your aperture, and your ISO. And it was a wonderful experience today with Sumit, and his technical knowledge is too good. And of course, if anyone joins this workshop, they will learn a lot with Sumit on this workshop. Thank you so much. Hi, I am Sami. I hold a camera which is a bridge camera from Panasonic. I'm very new into nature photography, and that's one reason I thought to come and learn in this workshop. I pretty much enjoyed the experience over here, the techniques which Sumit has taught us, the angles which he tells us to take the photos, of the way that we have to focus, and that eye that brings the best in the photography. That's all I have learned in today's session, and I'm pretty sure after today I will have a better vision towards how to take nature photography. My overall experience was really good over here, learning from him, understanding how all the concepts were really good. I think apart from this, there's one more thing, is the way this all workshop is highly organized. From the way we met over a Zoom call yesterday till each and every event is very well structured, and that's something which we really like. And yes, that's thanks to Sumit again for organizing such a beautiful workshop. So yeah, I would definitely recommend others also to join, and yeah, kudos to that. Thanks. Okay, so whenever I start my workshop, I just ask my participant to just introduce himself, just your name, what camera you have, what lens you are carrying today, what is your overall experience, कितने टाइम से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है टुडेज वर्कशॉप से. English okay? हाँ, इंग्लिश, हिंदी, whatever language, even the Marathi also. Okay. थोड़ा सा लॉक. My name is Sami. I recently took a hobby of photography, and I own a camera from Lumix, which is a bridge camera. And my expectation from the photography, from this nature photography, is basically to learn how to bring the shots better versus what I am doing in general. Try to understand how to capture the lights,
what are the, you know, that vision to see which I may not have at the moment, but maybe after the workshop I'll have a better understanding of all these things. Yes, definitely. Thank you. Pass on the mic. हाथ में ही बोलो. Just keep it near to your mouth. Near to your mouth. Yes. हाय, मेरा नाम रश्मि है और मैं आज फर्स्ट टाइम कोई फोटोग्राफी वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ. Don't look at the camera. और क्योंकि मुझे हॉबी बहुत टाइम से है, कैमरा भी मेरे पास बहुत समय से, लेकिन मुझे यूज़ करना नहीं आता. तो मैं वो समझना चाहती हूँ कि कैमरा कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कैसे करना है. तो टेक्निकलिटीज़ और डिटेल समझना चाहती हूँ. तो फर्स्ट टाइम है तो. Yes, sure. Yes. Hi, my name is Rajan, and I am doing photography from last 5-6 years now. And I am carrying a camera that is Canon 80D with a lens of 100-400 with 4.5 f value. And from this workshop, I want to enjoy the nature and want to take some good bird shots. And let's see if we get some good birds and maybe some kind of some of the nature shots that I want to cover today. Okay, let me introduce myself. My name is Sumit Dhupar, and I'm doing all these photography workshop events since Feb 2019. तो मैं तब से ये सब कर रहा हूँ, and the motive behind it कि how are you comfortable with Hindi or not? Comfortable? Okay. तो मेरा इसका पर्पस क्या था स्टार्ट करने का? So we will have a group of photographers at different levels and everyone coming with their own experience, knowledge. अगर किसी को knowledge नहीं भी है, so if that person will work with us, then definitely he will be +1. तो मेरा टारगेट ये रहता है कि when you are leaving this workshop, you will be +1. तो जितना भी आपका स्किल है, आप कुछ गेन करके जाएंगे. That's the only reason for this workshop. अगर वैसा अचीव हो पा रहा है, then it's really good what I'm doing. नहीं तो उसको कोई मतलब नहीं है करने का, वो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा. So we will try to learn really good things, and definitely you will be more comfortable after completing this. You will be more comfortable with the camera settings and all. और आज वर्कशॉप के लिए आई एम कैरिंग दिस काइंड ऑफ शीट. इसमें एक तरफ हमारे की नोट्स रहेंगे कि नेचर फोटोग्राफी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. सो आई विल नॉट स्किप ऑल द थिंग्स, एंड बिहाइंड इट आई हैव नॉलेज चेक. So in knowledge check, I will cover all the things which is required for better camera technical settings. जो भी आपका जो मेन इशू है ना, वो सारा इसमें knowledge check में कवर करूँगा मैं. और की नोट्स को हम साथ साथ करते रहेंगे. I'll just keep check कि कहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम मिल रहा है. So we'll cover all those. बाकी स्पेशल टिप्स क्या रहेंगे नेचर फोटोग्राफी के? We have to look for that सब्जेक्ट एंड वी लुक टू द एलिमेंट अराउंड आवर सब्जेक्ट कि कैसे उसको रीच हो रहा है. तो रूल ऑफ थर्ड सबको पता है. रूल ऑफ थर्ड. सो इन रूल ऑफ थर्ड we have it's a composition technique where we divide our frame with 2 horizontal and 2 vertical lines, and it will create 9 equal parts. So lines are crossing each other at some point. So those crossing points we call intersection point or focal point. When we say focal point, it means it's an area, or it's a, we can say that position in the frame where we are keeping our subject around. Whatever the most interesting element, it should be around the focal point. So it's focal point के. So just imagine you are dividing your frame with 2 horizontal and 2 vertical lines. So 4 focal points you will get. So your subject should be at least 1 or 2. एक या 2 फोकल पॉइंट के आसपास रहना चाहिए. मोस्टली हम अगर रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन का गूगल में सर्च करते हैं ना, सो वील फाइंड लॉट ऑफ इमेजेस वेयर वी हैव अवर सब्जेक्ट एदर लेफ्ट और राइट. तो एक तरफ एम्प्टी स्पेस रहता है. सो दैट्स द वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ यूजिंग रूल ऑफ थर्ड कि आपका सब्जेक्ट एक तरफ है और एक तरफ एम्प्टी है. सो वेयर वी हैव टू कीप द एम्प्टी स्पेस, वाइट स्पेस बोलते हैं उसको. सो वेयर वी हैव टू कीप इट, वी हैव टू सी दैट हमारा सब्जेक्ट का जो फ्लो जा रहा है किधर जा रहा है. इवन लीफ एंड फ्लावर ऑल्सो फ्लो, कहीं पे बेंड करते हैं हल्का सा.
सो जहाँ वो बेंड कर रहे हैं, इट मीन्स इट्स गोइंग टू अदर साइड, तो अदर साइड वी हैव टू कीप स्पेस. You can fill the frame with that technique. That's we call fill the frame. Center भी रख सकते हैं, but we are talking about here rule of third. So we will start with rule of third. तो उसमें rule of third में क्या है? आपका जो vertical line रहेगा, left या right, your subject should be on that vertical line. And one of the side will be empty. So empty के लिए एक तो मैंने आपको बताया जैसे flow जहाँ रहा है, और अगर कोई लिविंग सब्जेक्ट है, कोई बर्ड है, इंसेक्ट है, तो उनका फेस किस साइड है. सो वेयर बैक पे कम स्पेस रहेगा, बैक साइड पे, फ्रंट पे जिधर उनका फेस है वहाँ पे ज़्यादा स्पेस रहेगा. सो वी कॉल दिस एज एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द फ्रेम. एनर्जी जब आती है तो वहाँ पे उसको स्पेस चाहिए जाने के लिए. जस्ट इमेजिन ए फोटो वेयर सब्जेक्ट इज लुकिंग ऑन द लेफ्ट एंड यू डोंट हैव एनी स्पेस ऑन द लेफ्ट, बट बैक में पूरा स्पेस छोड़ा हुआ है. तो अजीब सही लगेगा कि वो फोटो से बाहर जा रहा है. सो इट मीन्स एनर्जी गोइंग आउट ऑफ द फ्रेम. सो वी हैव टू सी दैट कि हमें कैसे उसको एनर्जी को होल्ड करना है फ्रेम के अंदर. सो दैट्स अ वेरी बेसिक वे ऑफ कॉम्पोजिशन, बट इट्स रियली पावरफुल. जब आप इसको फॉलो करेंगे यू विल रियली फील दैट कि क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है. फाइंड ए गुड फोरग्राउंड, सो एडिंग डेप्थ टू द इमेज. सो जब भी हम फोटो ले रहे हैं सब्जेक्ट की, हमें चेक करना है कि उसके आगे और पीछे. It's specific to foreground. It means whatever the elements coming in front of, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर कोई लाइन है तो हम उसको कैसे एंगल करके यूटिलाइज कर रहे हैं कि इट्स रीचिंग टू दैट सब्जेक्ट, या उसको ब्लर आउट कर रहे हैं टू पार्शली कवर द फ्रेम. वी कॉल दिस एज ए फ्रेमिंग फोटोग्राफी. आई विल शो यू, मैं फोटो लूँगा, आई विल शो यू द एग्जाम्पल, आई आस्क यू टू जस्ट ट्राई टू रीडू दैट. एंगेज द आई विद रिपीटिंग पैटर्न. सो जैसे मैंने चलते हुए बताया आपको कि फाइंड समथिंग विच इज़ इन पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिशंस. लीव्स मोस्टली नेचर में बहुत दिखते हैं, एक शेप एंड साइज के रहते हैं, रिपीट होते हैं. सो ट्राई टू क्रिएट अ गुड पैटर्न विद दैट. नहीं तो उसके टेक्सचर में भी पैटर्न रहता है. इफ़ यू गो इन द डिटेल्स फॉर द नेचर यू विल फाइंड अ पैटर्न. एम्फेसाइज योर सब्जेक्ट, अरेंजिंग विजुअल एलिमेंट्स अराउंड द सब्जेक्ट. तो अगर आपको कहीं पे अच्छा सब्जेक्ट दिख रहा है, एंड फाइंड यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि थोड़ा सा कहीं से फ्रेम करके किसी के थ्रू यू हैव टू सी, टू जस्ट रैप इट अराउंड विद द एलिमेंट्स अराउंड, उसमें फ्रेम करके उसको फोटो खींच के देखना है कि कैसा आएगा फोटो. दैट रियली इट्स ए गुड वे ऑफ गिविंग ऑल अटेंशन टू योर सब्जेक्ट. क्रिएटिंग विजुअल एनर्जी यूजिंग ब्लर मोशन और डायगोनल लाइन्स. तो हमारे फोटोज़ में जब भी कभी लाइंस आ रही हैं, मोस्टली नेचर में ब्रांचेस आपको स्टेम्स दिखेंगे. सो इंस्टेड ऑफ शोइंग देम इन ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म, शो देम इन डायगोनल. सो व्हेन वी हैव डायगोनल लाइन्स इन आवर फ्रेम, वी से इट क्रिएट एनर्जी इन दैट फ्रेम. व्हेन वी हैव स्टैटिक लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन, वी कॉल इट एज वी कैन से एनर्जी लेस. मे बी इसमें बहुत ही इट विल क्रिएट काम फील, काम, पीसफुल, बिल्कुल स्टेबल. कुछ भी आपको अप डाउन नहीं होगा वाइल स्टडिंग दैट इमेज व्हेन इट्स ए स्टैटिक एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. तो मूवीज़ में सीन के अकॉर्डिंग, ये सिनेमैटिक फोटोग्राफर्स जो होते हैं ना, सीन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. वहाँ पे स्टेयर्स दिखाते हैं, लाइंस काफ़ी सारी, तो ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं मूवीज़ में. सो वी कैन मिमिक दैट इन द फोटोग्राफी टू. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं. सो अभी हम नीचे जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, देन विल कम ऑन टॉप एंड विल गो इन दैट साइड. वहाँ पे थोड़ा अपने को बर्ड एक्टिविटी ऊपर ट्रीज पे दिखेगा, नीचे पॉन्ड के आसपास दिखेगा. बिसाइड्स दिस कुछ अगर नेचर से रिलेटेड जैसे अच्छा कंपोजिशन दिखता है आपको और मुझे, वी विल टेल ईच अदर. तो कैमरा में हमारे मल्टीपल मोड्स रहते हैं, जैसे मोबाइल में भी रहते हैं, DSLR में भी रहते हैं कैमरा मोड्स. तो इसमें मोस्टली हम 3 मोड्स में काम करते हैं. मैनुअल मोड, जिसमें हमारे सारे सेटिंग्स हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं. द नेक्स्ट इज़ अपर्चर प्रायोरिटी, वेयर अपर्चर प्रायोरिटी मीन्स आवर प्रायोरिटी इज़ अपर्चर, सो वी आर कंट्रोलिंग द F नंबर. एंड द नेक्स्ट इज शटर प्रायोरिटी. निकॉन में उसको S में है और कैनन में TV. सो दैट वी हैव टू टेक केयर कि हम कौन से मोड में काम कर रहे हैं. सो
आई प्रेफर मैनुअल मोड क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. आई कैन कंट्रोल द सेटिंग्स. इनिशियली आई स्टार्टेड वर्किंग विद द शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी. तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में ट्रेडिशनल वे क्या रहता है कि अपर्चर प्रायोरिटी रहता है. नेचर में भी अपर्चर प्रायोरिटी. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स दे फॉलो अपर्चर प्रायोरिटी. सो वाई फॉलो अपर्चर प्रायोरिटी? बिकॉज उनका प्रेफरेंस है डेप्थ ऑफ फील्ड. व्हेन वी आर चेंजिंग अपर्चर, it's controlling depth of field of the photo. Depth of field means we are focusing on a subject, some part behind, some part in front will be in focus, rest will get out of focus or blur. जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो ब्लर आउट होता जाएगा. तो बोके हिलाने के लिए, पूरा ब्लर करने के लिए, क्लीन करने के लिए बैकग्राउंड को हम लो एफ नंबर पे जाते हैं, स्मॉल एफ नंबर पे. सो व्हेन वी से स्मॉल एफ नंबर, इट्स वी कॉल लार्ज अपर्चर. ये बड़ा ही टर्म टेक्निकल रहता है, लार्ज अपर्चर, स्मॉल अपर्चर. मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगी? क्या कैसे कैमरे में कहाँ देखना? अभी आप इसमें अपर्चर प्रायोरिटी में जाएंगे. सेटिंग्स कहाँ पे दिखेगा इसका? मैंने इसको ए पे चेंज किया. क्लिक. हाँ, तो यहाँ पर ये आपका एफ नंबर दिख रहा है ना. इसको हम डायल को घुमाएंगे तो देखेंगे एफ नंबर चेंज हो रहा है. तो इसको हम स्मॉल एफ नंबर पे रखेंगे बिल्कुल. तो आप भी डायल को जब घुमाएंगे एफ नंबर चेंज होगा, स्मॉल एफ नंबर पे रखेंगे. तो इसका स्मॉलेस्ट 4 है जैसे. हाँ, इसके आगे नहीं जा रहा है. तो इसके आगे यहाँ पर इसको हम 250 पे लेके जाएंगे. तो उसका स्मॉल चेंज हो जाएगा. अच्छा, नहीं हुआ है तो सही है यार. इट्स रियली गुड लेंस. तो F4 पे रखेंगे इसको ठीक है. और 250 mm पे ही रहेंगे. अच्छा. इसको नीचे नहीं जाएंगे. आपका मैक्सिमम जूम कितना है? अब वो बट इतना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो. तो आपको लिमिट में रखना है. आई विल शो यू द कंपोजिशन. उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है. मेरा कैमरा अच्छा भूल जाता हूँ. ठीक है. जैसे आप ए भी बता रहे थे ना, एक ए भी यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हाँ, है. तो ये शॉर्टकट है इसका. शॉर्टकट ये शॉर्टकट है. शॉर्ट इसको दबाएंगे. ओके, शो मी व्हाट यू आर ट्राइंग टू कैप्चर. शो मी. अभी हाँ, अभी क्या कैप्चर कर रहे थे आप? ये कैप्चर किया. ये दिख रहा है. हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला था, हम जब फोटो खींचेंगे ना, so we have to ask ourselves कि what we are trying to capture. So what you are trying to capture? मुझे तो इसमें छोटी-छोटी पानी की बूंदें दिख रही थी, वो मुझे. But it's too far. अच्छा, पास लेना चाहिए. So you have to get your answer by yourself कि उसके लिए हम उतने पास में नहीं है उसके. So all these things we have to be very clear कि what we are trying to capture, if that really is in our reach or not. अच्छा, मतलब ट्राई भी क्यों कर रहे हैं? ट्राई भी क्यों कर रहे हैं उसके? यार जस्ट वेस्टिंग योर एफर्ट. क्योंकि उसमें क्या है ना, आपको रिजल्ट नहीं आएगा एंड यू विल नॉट फील मोटिवेटेड. जब तक हमको हमारा बेस्ट रिजल्ट नहीं दिखता है ना, वी डोंट फील मोटिवेटेड. सो डोंट इवन ट्राई फॉर दैट. अगर आपके रीच में नहीं है, आस्क योरसेल्फ कि वो रीच में है क्या. आपके रीच में ही नहीं है तो देन व्हाट वी आर डूइंग. इसको हम टेम्पटेशन को कंट्रोल करना भी बोलते हैं. सो वी हैव टू कंट्रोल आवर टेम्पटेशन. इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग 1000 इमेजेस, गो फॉर 100, गो फॉर 50, इवन गो फॉर 10 अगर बेस्ट फोटोज हैं. अगर एक भी फोटो पूरे दिन में आती है ना, विच वी कैन रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम, इट मीन्स दैट्स आवर डे. सो वी हैव टू एम फॉर दैट वन अमेजिंग फोटो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 100,000. यहाँ पे मुझे लाइट थोड़ा सा हार्श आ रहा है. ऐसे शायद ना कि यहाँ पे पूरा पॉइंट कवर कर देता है, तो पूरा यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है. अदरवाइज वी यूज्ड टू वॉक टिल देयर. पूरा भर गया पानी यहाँ पे, पूरा कवर हो गया. Always try to capture your subject at the eye level. When we say eye level, it means you are right in front of them. जो भी आपका उसमें सब्जेक्ट का टॉप पार्ट या फिर जो भी आप पार्ट पे एम कर रहे हैं, फोकस ले रहे हैं, दैट शुड बी राइट इन फ्रंट. पूरा एग्जैक्ट सामने रहना चाहिए. उसका 2 रीज़न रहता है. उसका एक तो रीज़न रहता है पर्सपेक्टिव का. व्हेन वी सी द फोटो इट विल फील लाइक वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ. व्यूअर जब उसको फोटो को ऑब्जर्व करता है, दे फील लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ. जस्ट इमेजिन, मैंने लास्ट टाइम भी एक मूवी का एग्जाम्पल दिया था फ्रेमिंग के क्वेश्चन पे. सो दिस इज ऑल्सो फिटिंग रियली वेल. अब मूवी देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन अगर सारी मूवी वो टॉप एंगल से शूट करेंगे, हाउ यू विल फील दैट. सारी मूवी को अगर टॉप एंगल से शूट करेंगे जहाँ पे पूरा ग्राउंड ही बैकग्राउंड में आ रहा है आपको, यू विल नॉट फील गुड.
सो एज ए व्यूअर वी हैव टू सी कि हम उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं। और उसका दूसरा क्या रीज़न रहता है कि आपका जो बोके है, बैकग्राउंड ब्लर है, जितना बैकग्राउंड दूर जाएगा वो ब्लर बढ़ता जाएगा। तो जितना हम ग्राउंड लेवल पे आते जाएंगे, डिस्टेंस विद द बैकग्राउंड इट विल इंक्रीज। जितना ऊपर जाएंगे वो डिस्टेंस कम होता जाए। एंगल भी देखो तो शॉर्ट हो जाता है। हाँ, तो वही तो वी आर जस्ट इम्प्रूविंग दैट बैकग्राउंड ऑल्सो। तो यहाँ पे इसका देखेंगे एंगल किधर है, फ्लो, हमने जो फ्लो सीखा था, फ्लो लेफ्ट साइड पे है। तो आपने उधर तो स्पेस हाँ, मैंने उधर स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखा है। इट्स मूविंग देयर। जस्ट इमेजिन अपोजिट साइड, अगर मैं इसको फोटो लेता बैकग्राउंड में कुछ नहीं, अगर वहाँ पे स्पेस छोड़ता, इधर स्पेस नहीं होता, ऑफ लगता। ट्राई इतना लाइट इतना अच्छा नहीं है, हमें इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए व्हाट वी कैन डू, थोड़ा बैकग्राउंड में हम चेंज करेंगे। यहाँ से पीछे ब्राइट है ना, मे बी विल ट्राई दैट। वहाँ पे देखते हैं उसका कैसा फील आता है। सडनली लाइट कम हुआ, सो आई वाज एबल टू कैप्चर दिस। सडनली लाइट कम हुआ ना, सो इट्स ऑल दैट मोमेंट। बहुत ही अच्छा क्लीन कंपोजिशन आ गया है उसी टाइम में, क्योंकि लाइट थोड़ा सा डाउन हुआ, नहीं तो थोड़ा सा हार्श जा रहा। थोड़ा अभी शेडो हुआ था ना, उसकी वजह से पूरा कंपोजिशन का पूरा चेंज हो गया वो। क्योंकि वो शेडो हो गया था, तो नथिंग वाज हार्श। ट्राई करो ना, आप कर सकते हो। दिस लेंस यू कैन डू इट। सिमिलर कंपोजिशन यहाँ पर है ना, ये किसी एक पे फोकस करना है आपको। गेट रियली, किसी एक पे फोकस करना है। यू हैव टू फाइंड द वन जो आपको सबसे अच्छा लगे। बंचेस पे नहीं जाएंगे हम टारगेट करेंगे। दैट वन शुड बी लुकिंग एज ए डिफरेंट, मतलब कि पूरा अलग से दिखना चाहिए। इट शुड नॉट लुक इन बंचेस। हमें उस लेवल की फोटोग्राफी सीखनी है। मैनुअल फोकस, इसको हम फोकसिंग रिंग बोलते हैं। फोकसिंग रिंग ही है ना, नहीं ये जूम है। फोकसिंग रिंग ये रहेगा, इससे हल्का सा हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज फोकसिंग रिंग। राजन सर, नीड आउट ऐसे। दिखाइए सर। एक ही पे मैं किया है। हाँ, इट्स रियली गुड। बस अपने को थोड़ा सा और क्या है, यू हैव टू गेट पैरेलल टू अवर सब्जेक्ट। जैसे ये लाइन है ना, इसकी रेड कलर में है, ये बहुत ही अच्छी दिखेगी आपको कंप्यूटर पे। ग्रीन के पीछे वो रेड लाइन बहुत अलग से दिखेगी। ये देखिए, ट्राई कर रहा। तो आपको पैरेलल में जाना है। साइड में जाएंगे तो वो ब्लर आउट हो जाएगा। तो वैसा फाइंड किए जिसमें सामने हो आप, बिल्कुल सामने। इस पे कर सकते हैं आप। सामने गलत एंगल है, इट्स रॉन्ग। सामने यहाँ पे एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड कैसा रहता है ना, अपने हमने उसके साथ प्ले करना है। इतने पास से अलाउ करेगा क्या फोकस? तो पीछे जाना पड़ेगा आपको। जस्ट इमेजिन, तो पहले आप बंचेस में ले रहे थे और इसमें इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा। और अपना क्या ना, ISO थोड़ा सा ठीक है, नॉट बैड। इसको थोड़ा सा में जो बैकग्राउंड मर्ज हो रहा है ना, डार्क वाला, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, थोड़ा सा टॉप में जाएंगे। हमें पूरा ग्रीन चाहिए। अच्छा, ये जो ब्लैक अपने ब्लैक आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, हमें पूरा ग्रीन चाहिए। थोड़ा सा अपना एंगल एडजस्ट करना होता है। और जो हमारा कैमरा का जो होल्ड करने का पोजीशन भी रहता है ना, मोस्टली हमारा वो करेक्ट नहीं रहता है। इसकी वजह से भी कंपोजिशन खराब होता है। हमारा जो हैंड है वो एल्बो हमारा लेफ्ट वाला बॉडी के बिल्कुल टच रहना चाहिए, टक्ड इन रहना चाहिए। और ये हमारा कैमरा पूरा स्टेबल रहना चाहिए हाथ के ऊपर। तो इट विल गिव यू मोर स्टेबिलिटी। तो फोकस जो मोस्टली मिस होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहता है। सो दैट्स हाउ वी वर्क। अभी हमें, क्योंकि आपकी फोटोज यहाँ पे थोड़ा ब्लर आउट हो रहा था,
आपका फोटो ब्लर आउट हो रहा था क्योंकि शटर स्पीड लो थी। तो हमारा टेक्निक क्या रहता है उसको ठीक करने का, हमें शटर स्पीड को बढ़ाना है। शटर स्पीड बढ़ाना है तो लाइट को हमें अलाउ करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एपर्चर ओपन करना पड़ेगा, यानी कि स्मॉल एफ नंबर। तो हम जितना स्टेप शटर स्पीड को ऊपर जाएंगे उतना ही स्टेप नीचे जाएंगे। काउंट करना है, तो क्लिक 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 साउंड आता है डायल बटन का। वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप चेंज होती है। इसको हम 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन बोलते हैं सेटिंग्स में, टेक्निकल टर्म। एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा, छोटा एफ नंबर, यू हैव टू स्मॉल एफ नंबर। उसको हम लार्ज एपर्चर बोलते हैं। लार्ज एपर्चर मीन्स कि जो आपका लेंस के अंदर एपर्चर जो रहता है अंदर कंपोनेंट, वो पूरा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। वो एक ग्लास की तरह है ऐसे, जो खुलता है बंद होता है। स्मॉल एफ पे वो खुल जाता है, लार्ज एफ पे बंद हो जाता है। हाँ, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो अगर हम लार्ज एपर्चर सोचेंगे तो उसमें कभी लगेगा बड़ा एफ नंबर, लार्ज एपर्चर स्मॉल एफ नंबर, स्मॉल एफ नंबर लार्ज एपर्चर, लार्ज एफ नंबर स्मॉल एपर्चर। तो थोड़ा सा रहता है कंफ्यूजिंग पार्ट, बट कीप इट सिंपल। स्मॉल एफ नंबर लाइट को ज़्यादा अलाउ करता है, लार्ज एफ नंबर लाइट को ब्लॉक करता है। तो आपको शटर स्पीड अगर 150 था, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप कितना बढ़ाएंगे आप, अकॉर्डिंग टू योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम बढ़ाते हैं ना उसको। तो अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ हम 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप अगर शटर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो 3 स्टेप हमें एपर्चर भी लेकर जाना है। बट आप एक ऐसी लाइट कंडीशन में फंस जाएंगे जहाँ पे आपका ऑप्शन ही नहीं रहेगा शटर स्पीड को नीचे लेके जाने के लिए। तब वहाँ क्या करेंगे, ISO थर्ड कंपोनेंट। एक्सपोजर को हम ट्रायंगल फॉर्म में बोलते हैं, एक्सपोजर ट्रायंगल, बहुत बार सुना भी होगा टेक्निकल टर्म में। एक्सपोजर ट्रायंगल मतलब जो हमारे एक्सपोजर कंट्रोल हो रहा है कैमरा के अंदर, वो शटर स्पीड, एपर्चर और ISO कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ पे हमको शटर स्पीड हमने कंट्रोल कर लिया, एपर्चर लिमिट में आके रुक गया, हम उससे आगे उसको नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी डाउन, फुल डाउन है, तो हमें फिर ISO को रेज करना पड़ता है, ISO को बढ़ाना पड़ता है। ISO आपका जो कैमरा की जो लाइट सेंसिंग एबिलिटी है, कैमरा सेंसिटिविटी फॉर द लाइट, उसको रेज करता है। इट मीन्स इट कैन सी लॉट ब्राइटर थिंग्स इवन इन डार्क कंडीशन, बट एट द कॉस्ट ऑफ द इमेज क्वालिटी। उसमें थोड़ा इमेज में नॉइजी आ जाएगा, ग्रेनी इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा कम रखना है। जितनी जरूरत है उतना ही बढ़ाना है, उतना ही। सो हाउ वी वर्क विद द मैनुअल ISO, वो आप मेरा वीडियो चेक करेंगे ना, 1.5-2 घंटे का वीडियो है, तो पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। बार बार रिपीट कर सकते हैं, स्लाइड फॉर्म में है, सो टेक्स्ट में है डेफिनेशन एवरीथिंग, सो इट विल बी वेरी गुड। सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है फोटोग्राफी का अपना इम्प्रूव करने का? फाइंड सम गुड क्वालिटी फोटोज ऑन इंटरनेट। बहुत मिलेंगे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, उनके फोटोज को आप स्टडी करो, देखो कि क्या है उसके अंदर, एंड ट्राई टू रीच द सिमिलर क्वालिटी। आई नेवर एक्चुअली हेजिटेट टू कॉपी एनी अदर फोटोग्राफर, क्योंकि हमें कॉपी करने के लिए भी क्वालिटी चाहिए ना। नकल के लिए बोलते हैं, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, तो वो अकल आ जाएगी ना, देन यू कैन इम्प्रोवाइज, देन यू कैन फाइंड योर ओन यूनिक कॉम्पोजिशन। बट हमें उस लेवल तक तो पहुंचना है अपने आप को। सो एटलीस्ट यू शुड सेट सम बार्स ना अपने लिए, इजी टारगेट्स, कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ। फोटो देख के लगना चाहिए, वो लगेगा आपको इजी, लेकिन जब आप करने जाएंगे देन यू विल इनिशियली स्ट्रगल। फोटो देखने में लगता है बहुत आसानी से, एक्चुअली अच्छी फोटो की क्वालिटी वही होती है जो लगे कि बहुत आसानी से कैप्चर हो सकता है। जैसे वो क्रिकेट में रहता है ना, शॉट्स जितना अच्छा होता है उतना लगता है हम भी तो मार सकते हैं। तो इट्स सेम फीलिंग। एनी क्वेश्चन अराउंड कंट्रोलिंग एक्सपोजर, लाइट फोटो में अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है? स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ नहीं, बाय दैट्स व्हाट ना, बट क्वेश्चन जब मैं वैसे पूछ रहा हूँ ना कि क्वेश्चन है, इसका मतलब कि कहीं आपको लग रहा है कि आप सेटिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इट्स गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। कर तो रहे हैं, दैट्स डूइंग, बट वी आर डूइंग ना। इतनी देर से आप इतनी सारी फोटो खींच रहे थे, सो आर यू स्ट्रगलिंग इन दैट गेटिंग एक्सपोजर? फोकस पे अब उसमें मत जाओ, अभी हम एक्सपोजर की बात कर रहे हैं।
फोकस यू में मिस, वो में बहुत ज़्यादा विंड है तो स्टेबल नहीं है. यू हैव टू फाइंड समथिंग स्टेशनरी, स्टिल ऑब्जेक्ट्स, ट्री ब्रांच जो फिक्स रहते हैं, हिलते नहीं हैं, उस पर आप वो कर सकते हैं. बट आई एम आस्किंग अबाउट द एक्सपोजर, क्योंकि हमारा जो मेन रहता है एक्सपोजर कंट्रोल रहता है. इफ़ यू गॉट आइडिया और कॉन्सेप्ट दैट क्लियर ना फॉर एक्सपोजर कंट्रोल, इट मीन्स यू आर 50% एटलीस्ट इन कंट्रोल ऑफ दैट कैमरा सेटिंग. बाकी जो 50% रहता है आपका फोकसिंग का रहता है कि हमारा फोकस मिस क्यों हो रहा है. रिमेनिंग 50% इज लाइक दैट.